Bismillahirrahmanirrahim. The topic which I have selected for my lecture is Statements and Confessions under Section 164 CRPC. So far as the relevant provisions are concerned, under this topic we will discuss Section 164 and Section 364 CRPC. First of all, I will discuss the scope and application of Section 164 CRPC. So far as the Section 164 is concerned, it has two portions. In one portion, we will learn the statements, and in second portion, we will learn the confession under Section 164 CRPC. This section provides for the recording of confessions by accused persons and statements by any person, including an accused, where statement of the accused was not recorded by complying with the provisions of Section 364 CRPC. It was not admissible in evidence as a confession. It has been mentioned PLD 1983 FSC पेज 497, जिसमें ये बात बयान की गई है कि कन्फेशन जो है वो मुल्ज़म की तरफ से रिकॉर्ड करवाया जाता है और जो स्टेटमेंट है वो मुल्ज़म की तरफ से भी रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन किसी दीगर शख्स की तरफ से भी रिकॉर्ड की जा सकती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 164 CRPC कि कौन से ऐसे लोग हैं जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी कन्फेशन रिकॉर्ड करवाई जा सकती है. तो याद रखिए, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि कन्फेशन हमेशा मुल्ज़म की तरफ से रिकॉर्ड करवाए जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट जो है वो मुल्ज़म के साथ साथ दीगर कोई शख्स भी रिकॉर्ड करवा सकता है. So far as the language of Section 164 CRPC is concerned, under subsection 1 we will discuss any magistrate of first class and any magistrate of second class, specially empowered in this behalf by the provincial government, may, if he is not a police officer, record any statement or confession made to him in the course of an investigation under this chapter or at any time afterwards before the commencement of inquiry or trial. Four things are enunciated under subsection 1. Number 1, this is the power of magistrate of first class and magistrate of second class. But magistrate of second class must specially be empowered in this behalf by the provincial government. Second thing is that a police officer cannot record confession under Section 164 CRPC. And third thing is that the magistrate can record any statement or confession made before him in the course of an investigation under this chapter. And fourth thing is that the stage before the commencement of inquiry or trial, कि वो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई इंक्वायरी या ट्रायल कंडक्ट होता है तो उसमें भी वो मैजिस्ट्रेट जो है वो कन्फेशन या स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 में रिकॉर्ड. जहाँ तक सबसेक्शन 1A का ताल्लुक है तो एनी सच स्टेटमेंट में बी रिकॉर्डेड बाय सच मैजिस्ट्रेट in the presence of the accused and the accused given an opportunity of cross-examining the witness making the statement. अगर कोई गवाह कोर्ट में कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है तो उस पर यह कंपल्शन है जी कि वो कंपल्शन नहीं है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि वो चाहे तो मुल्ज़म की मौजूदगी में भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, और जब वो ऐसी स्टेटमेंट मुल्ज़म की मौजूदगी में रिकॉर्ड करेगी तो उस पर ये ज़रूरी है
कि जो मुलजम है वो उसको क्रॉस एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी या मौका दिया जाएगा। जहां तक सबसेक्शन 2 का तल्लक है तो उसमें यह बयान किया गया है कि सच स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन सच ऑफ द मैनर्स हेयर एंड आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस एज इज इन हिज ओपिनियन बेस्ट फिटेड फॉर द circumstances of the case. Such confessions shall be recorded and signed in the manner provided in section 364, and such statements or confessions shall then be forwarded to the magistrate by whom the case is to be inquired into at trial. सबसेक्शन 2 के 2 हिस्से हैं जिसमें यह वजाहत कर दी गई है कि जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको इस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा जैसे हम एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं, और जहां तक कन्फेशन का ताल्लुक है तो उनको इस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा जो प्रोसीजर सेक्शन 364 CRPC में बयान किया गया है, और उन पर दस्तखत भी किए जाएंगे मैजिस्ट्रेट के भी और कन्फेशन करने वाले के भी। ऐसे स्टेटमेंट्स और कन्फेशन जो हैं उनको फिर मुतलका मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और मुतलका मैजिस्ट्रेट वो है जिसने उस केस में इंक्वायरी करनी है या फिर उसका ट्रायल करना है। अब सबसेक्शन 3 का जहां तक ताल्लुक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ सबसेक्शन 164(3) which enunciates that a magistrate shall before recording any such confessions explain to the person making it that he is not bound to make a confession, and that if he does so it may be used as evidence against him, and no magistrate shall record any such confession unless upon questioning the person making it he has reason to believe that it was made voluntarily, and when he records any confession he shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect. इसमें जो पूरा प्रोसीजर बयान किया गया है उस शख्स के जो कन्फेशन है उसको रिकॉर्ड करने का, तो उसका तरीकेकार यह है कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले मैजिस्ट्रेट साहब के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक्सप्लेन करेंगे कन्फेशन करने वाले को कि ही इज़ नॉट टू बाउंड टू मेक ए कन्फेशन, कि वो इकबाल जुर्म करने का पाबंद नहीं है, और अगर उसने ऐसा किया तो यही इकबाल जुर्म शहादत में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि कोई मैजिस्ट्रेट उस वक्त तक कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक वो कन्फेशन करने वाले को ये सवालात न कर ले और उसके पास यकीन करने की वजूहात मौजूद ना हो कि जो वो कन्फेशन कर रहा है इट वाज मेड वॉलेंटरीली, वो अपनी आज़ाद मर्जी से आज़ाद रजामंदी से ये इकबाल जुर्म कर रहा है। और जब वो ऐसा कन्फेशन रिकॉर्ड करता है मैजिस्ट्रेट तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस कन्फेशन के आखिर पर एक फुट नोट लिखेगा जिसे हम मेमोरेंडम कहते हैं, और उसमें ये चीज़ें शामिल होंगी कि मैंने फलां शख्स को एक्सप्लेन कर दिया है कि वो कन्फेशन करने का पाबंद नहीं है, और अगर वो ऐसा करता है तो ये कन्फेशन उसके खिलाफ एविडेंस में इस्तेमाल हो सकता है, और मैं यकीन रखता हूँ कि ये जो कन्फेशन किया गया है ये वॉलंटरीली है और ये मेरी मौजूदगी में किया गया है और मेरी हियरिंग में किया गया है और मैंने उसको ये पढ़कर सुनाया है और उसने उसको एडमिट किया है कि ये करेक्ट है, एंड इट कंटेन्स ए ट्रू एंड फुल अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय हिम, और इस पर उसकी मुकम्मल स्टेटमेंट जो है वो मौजूद है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है उस फुट नोट के नीचे अपने सिग्नेचर करेगा। एक्सप्लेनेशन में ये बड़ी अहम बात बयान की गई है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मैजिस्ट्रेट रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग ए कन्फेशन और स्टेटमेंट शुड बी ए मैजिस्ट्रेट हैविंग द जुरिसडिक्शन इन द केस। इससे साबित हुआ कि जो मैजिस्ट्रेट कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है उसके लिए उस मुकदमा की इख्तियार समात रखना जरूरी नहीं है।
ये एक्सप्लेनेशन में बयान कर दिया गया है कि ही कैन बी अनदर मैजिस्ट्रेट बाय होम द केस इज टू बी ट्राइड एंड हिज jurisdiction is not necessary, territorial jurisdiction is not necessary to record the confession or statement. अब जनाब अली जहां तक इसकी वॉलंटियरनेस का ताल्लुक है तो उसमें 2004 PCRL जे पेज 1239 में यह बात बयान की गई है कि जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाए उसमें तमाम स्टेप्स जो हैं उनका फुल अकाउंट होना ज़रूरी है। वॉलंटियरनेस को इंश्योर किया जाना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसके बगैर वो पूरी नहीं होती। तो इसके लिए मैजिस्ट्रेट का सेटिस्फाइड होना और बिलीव होना इंतहाई ज़रूरी है कि दी कन्फेशन इज रिकॉर्डेड अंडर वॉलंटरीली कंडीशंस एंड देयर इज नो instigation on the person making the confession. उसके बाद ये है कि ये मैजिस्ट्रेट जो हैं जी वो कब इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जनाब अली इसकी दो स्टेजेस सेक्शन 164 में बयान की गई हैं कि कोई मैजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल से पहले भी इसको रिकॉर्ड कर सकता है और आफ्टरवर्ड्स जब बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि there are three kinds of confession: judicial confession, extrajudicial confession and retracted confession. So far as the judicial confession is concerned, it is always made before a magistrate, and the volunteerness is the foremost requirement of judicial confession. So far as the extrajudicial confession is concerned, it is made before any person accept the judicial magistrate, and retract confession means a confession from which the person who made a confession is withdrawing or backing out, यानी वो उससे मुनहरफ हो गया है जो उसने कन्फेशन किया है। अगला सवाल पैदा होता है जी कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? अ कन्फेशन इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज इनवॉलेंटरी मियरली बिकॉज इट इज रिट्रैक्टेड। आप इनवॉलेंटरीली नहीं कह सकते अगर कोई शख्स अपने कन्फेशन से मुकर गया है। एज अगेंस्ट द मेकर ऑफ द कन्फेशन, द रिट्रैक्टेड कन्फेशन मे फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन। इट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू एंड वॉलंटरीली मेड। और ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन है उसकी बुनियाद पर भी मुल्ज़िम को सज़ा हो सकती है, कन्फेशन करने वाले को सज़ा हो सकती है, लेकिन आपने इंश्योर करना है कि इट वाज मेड ट्रू एंड वॉलंटरीली। दो चीज़ें आपने उसमें इंश्योर करनी है कि इट वाज मेड ट्रूली एंड वॉलंटरीली। तो अगर बेशक वो कन्फेशन से रिट्रैक्ट कर जाए, इसके बावजूद ही कैन बी कन्विक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉ। जहां तक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का तल्लक है तो देखिए, द कन्विक्शन कैन नॉट बी बेस्ड सोलली ऑन टेस्टिमनी ऑफ co-accused. Such confession could be considered in conjunction with other supporting evidence. जहां तक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का ताल्लुक है जी, तो इस अकेले की बुनियाद पर आप किसी को सजा नहीं दे सकते। आपको चाहिए कि आपको इसको दीगर सपोर्टिंग एविडेंस से corroborate कर लें या कंजंक्शन कर लें, उसके बाद आप मुल्ज़िम को इसकी बुनियाद पर सजा दे सकते हैं।
उसके बाद अगला सवाल पैदा होता है जी कि क्या वॉलंटरीली नेचर का कन्फेशन जो है वो क्या होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैजिस्ट्रेट साहब इस बात का तयन करेंगे, इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव या प्रेशर नहीं है। उसके बाद है जी कि टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन का जहां तक ताल्लुक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर द स्टेटमेंट्स अंडर दिस सेक्शन वर रिकॉर्डेड बाय ए मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जे, whereas the occurrence in the case took place in the area of district S in propriety and paratic, the magistrate should have directed the witnesses to appear before their Elaka magistrate in district S, because normally magistrate of each district have been allocated work of their own districts. This explanation lays down that it is not necessary that the magistrate recording the statement should have jurisdiction to inquire into or try the particular case. 1983 PCRL जे 1893 में ये बात बयान की गई है कि जिस इलाके का एरिया मैजिस्ट्रेट हो, कन्फेशनल स्टेटमेंट में अमूमी तौर पर उसी के सामने होनी चाहिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन गिवन अंडर सेक्शन 164 एक्सक्लूड्स दिस, दैट एक्सप्लेनेशन बयान करती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हो ये वही मैजिस्ट्रेट हो जिसको इंक्वायरी या ट्रायल में टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन हासिल हो। जहां तक एविडेंशियल वैल्यू ऑफ कन्फेशन का ताल्लुक है, mere fact that reply of accused was not taken down to question that if they made confessions, it would be used against them at the trial and they could be convicted and sentenced for offense would not affect the evidential value of conviction. उन्होंने कहा जी कि ये जो कन्फेशन है इनकी एविडेंशियल वैल्यू ये है कि जिन लोगों ने कन्फेशन कर लिए उनके वो कन्फेशन उनके खिलाफ एविडेंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उसकी बुनियाद पर उनको कन्विक्शन और सेंटेंस दी जा सकती है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कन्फेशन जो है वो ऑन ओथ होना चाहिए कि या ओथ के बगैर होना चाहिए, तो उस पर बहुत सी जो साइटेशंस हैं वो बयान की गई हैं। Administration of oath to an accused person is an express statutory illegality by reason of section 5 of Oaths Act, and the same must make the confession inadmissible, having been obtained in an illegal manner, and its rejection must follow as matter of course. दूसरी अथॉरिटी में कन्फेशन मेड अंडर दिस सेक्शन comes within the ambit of section 5 Oath Act, and the magistrate acts illegally in recording it on solemn affirmation. Furthermore, if the account of the occurrence given in the statement by the appellant is contradictory to what is the prosecution version, the confessional statement cannot be utilized as a corroborative piece of evidence. तो उसमें ये करार दिया गया है कि जी अगर आप कन्फेशनल स्टेटमेंट में ओथ एडमिनिस्टर करते हैं तो ये टोटली इलीगल एक्टिविटी होगी और इसकी बुनियाद पर जो कन्फेशन होगा वो इलीगल मैनर होगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इट हैज़ बिन हेल्ड इन 1992 PCRL जे पेज 955। अब जनाब कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का जो तरीक़ेकार है ये बयान किया गया है सेक्शन 364 CRPC में, एंड आई वुड लाइक टू रीड आउट द लैंग्वेज ऑफ
section 364 CRPC, where it has been categorically mentioned that whenever the accused is examined by any magistrate or by any court other than the High Court, the whole of such examination, including every question put to him and every answer given by him, shall be recorded in full in the language in which he is examined, and that if is not practicable in the language of the court or in English, and such record shall be shown or read to him, or if he does not understand the language in which it is written, shall be interpreted to him in the language which he understands, and shall be at liberty to explain or add to his answers. पहले सबसेक्शन में 5 से 7 चीजें बयान की गई हैं। जब भी कोई मुल्ज़म किसी मैजिस्ट्रेट के सामने कोई बयान देता है या किसी ऐसी कोर्ट के सामने जो कि हाई कोर्ट नहीं है, तो उसका तमाम एग्जामिनेशन उसमें जिसमें हर सवाल जो किया जाएगा और हर वो जवाब दिया जाएगा उसको मुकम्मल तौर पर लिखा जाएगा और उसको मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा उस ज़बान में जिसमें वो बयान दे रहा है। और अगर वो ऐसा प्रैक्टिकेबल नहीं है तो वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, तो अदालत की ज़बान में वो उसको लिखा जाएगा या फिर इंग्लिश में लिखा जाएगा, और जो ऐसा रिकॉर्ड होगा वो उसको दिखाया भी जाएगा और पढ़कर सुनाया भी जाएगा। और अगर वो उस अंडरस्टैंड नहीं करता लैंग्वेज को जिसमें ये लिखा गया है तो उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, यानी उसकी तशरीह करके बयान की जाएगी उस लैंग्वेज में जो वो समझता है। और उसको इस बात की आज़ादी है कि वो अपने उस बयान में कोई कमी पेशी करना चाहता है तो उसको उसमें इजाफा करने का या एक्सप्लेन करने का हक हासिल होगा। जहाँ तक सेक्शन 364 सबसेक्शन 2 का ताल्लुक है, उसमें बयान ये किया गया है कि जब इस बात की कंफर्मेशन हो जाए कि उसने जो बात बयान की है ये सच है, तो उस रिकॉर्ड पर उस मुल्ज़म के दस्तखत करवाए जाएंगे और मैजिस्ट्रेट साहब के या जज साहब के दस्तखत करवाए जाएंगे। और वो जज साहब जो हैं, मैजिस्ट्रेट साहब, अपने हाथों से इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये जो एग्जामिनेशन था उनकी मौजूदगी में लिया गया और ज़ेरे समात लिया गया, और इस बात का भी वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि मुल्ज़म की जो स्टेटमेंट है वो फुल और ट्रू मुकम्मल तौर पर लिखी गई है। तीसरे सबसेक्शन में बात बयान की गई है कि अगर किसी मुल्ज़म का जो स्टेटमेंट है या एग्जामिनेशन है वो मैजिस्ट्रेट साहब या जज साहब जो है वो रिकॉर्ड नहीं करते, तो वो पाबंद हैं कि जैसे जैसे उनके वो मेमोरेंडम लिखेंगे लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में या फिर इंग्लिश में, जिसमें इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ऐसा मेमोरेंडम जो है उस पर उन जज साहब के दस्तखत भी होने चाहिए और उनके हाथों से लिखा हुआ होना चाहिए, और उसको रिकॉर्ड के साथ अनेक्स्ट किया जाएगा। और अगर मैजिस्ट्रेट साहब अनएबल हैं कि वो उस मेमोरेंडम को नहीं लिख सकते तो वो उसके ना लिखने की रीज़न भी बयान करेंगे। इस सेक्शन में दी जाने वाली कोई चीज़ जो है वो सेक्शन 263 के तहत एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज पर असरअंदाज नहीं होगी। तो इसमें जनाब जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ये बात बयान की गई है कि ये जो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 364 का, ये मैंडेटरी इन नेचर है। ट्रायल कोर्ट रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 342 CRPC of necessarily has to certify under his own hand in the manner prescribed that the examination was taken in his presence and the hearing, and that the record contains a full and true account of the statement made by the accused। तो इसमें जो मुल्ज़म के 342 के बयानात हैं वो भी शामिल कर दिए गए हैं कि जब भी वो रिकॉर्ड किए जाएंगे तो उस पर जज साहब जो हैं वो अपने मुकम्मल दस्तखत करेंगे
और अपनी स्टेटमेंट देंगे कि इट वाज रिकॉर्डेड इन फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट। अब एक अगला सवाल पैदा हो जाता है जी कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो मेमोरेंडम बनाने में उनसे कोई ओमिशन हो जाता है या कोई गलती हो जाती है तो क्या ये उसकी तस्हीह हो सकती है। तो 1997 PCRL J 1274 में ये बात बयान की गई है। ओमिशन बाय मैजिस्ट्रेट टू मेक ए मेमोरेंडम with the confessional statement of accused in accordance with the requirement of section 364 CRPC is curable under section 537 CRPC। तो इसमें उन्होंने ये बात की वजाहत कर दी है जी कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो मेमोरेंडम बनाते हैं किसी कन्फेशनल स्टेटमेंट का तो उससे वो कुछ चीज़ ओमिट कर देते हैं जो कि सेक्शन 364 की रिक्वायरमेंट थी, तो ये क्योरेबल है अंडर सेक्शन 537 CRPC के तहत जनाब इसको दुरुस्त किया जा सकता है। उसके बाद है जी कि अगर आप 342 CRPC की कंप्लाइंस जो स्टेटमेंट है उनको रिकॉर्ड करते हुए कंप्लाई नहीं करते तो उसका क्या इफेक्ट है। अक्यूज्ड वाज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय ए काउंसिल एंड क्रॉस एग्जामिनेशन पुट बाय हिम वाज scantily whereby he had failed to controvert the prosecution or discredit their testimony. Trial court in circumstances has materially erred in not by itself making an endeavor to discover the truth by cross-examine the witnesses. Witnesses had claimed to have proceeded to the place of incident vide an entry in the station diary, but the same had not been proved, which had created a serious doubt about the genuineness of the prosecution story. Trial court had failed to frame the charge against the accused after the case was transferred to it for trial from the court of magistrate, and the trial on the score alone stood vitiated. Trial court had also not appended a certificate after recording the statement of the accused under section 340 CRPC and had committing an illegality by not complying with the mandatory provisions of section 364 CRPC, which was incurable. Trial court had further material misconducted the aspect of burden of proof as enjoined by section 8 of the Suppression of Terrorism Activities Special Codes Act 1975. Burden of proof had not been shifted to the accused as prosecution had failed to make out any reasonable case against the witnesses of recovery were not independent. Accused was acquitted in circumstances. अच्छा देखिए 342 की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सेक्शन 364(2) के तहत रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो अदालत ने इस बना पर जो मुल्जमान थे उनको बरी कर दिया। तो ये है जी इफेक्ट कि अगर आप स्टेटमेंट को जो उसकी रिक्वायरमेंट है 364(2) की जो ये बयान करती हैं कि व्हेन द होल इज मेड कन्फर्मेबल टू व्हाट ही डिक्लेयर्स इज ट्रूथ, जब उसने कन्फेशन किया कि ये सच है, द रिकॉर्ड शैल बी साइंड बाय द अक्यूज्ड एंड मैजिस्ट्रेट, दोनों के दस्तखत होने चाहिए, और जज ऑफ सच कोर्ट एज सच मैजिस्ट्रेट और जज shall certify under his own hand that the examination was taken in presence and hearing। अगर ये चीज़ें जज साहब नहीं करते तो ये अनक्योरेबल है और इनकी बुनियाद पर किसी मुल्ज़म को बरी किया जा सकता है, और ऐसा ही 1997 MLD 1632 में बयान किया गया है। तो मेरे ख्याल में आज मैंने आपको कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, कन्फेशन और स्टेटमेंट्स के दरमियान फ़र्क भी बता दिया है। कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का तरीक़ेकार सेक्शन 364 में बयान किया गया है,
जबकि स्टेटमेंट को बयान करने का वही तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है, और आमतौर पर एविडेंस जो है वो 353 CRPC के तहत रिकॉर्ड की जाती है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर इसमें कुछ सवालात हों तो मैं उनके जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हूँ। अल्लाह।